Good morning, everyone. Welcome to the Northeast PSC. So, continue to the series of economy PYQ. So last class में we've seen that 30 questions of जो previous year questions हैं economy के उसको यहाँ पे हम उसके next और continue करेंगे. ठीक है, इसमें अपना जो 31st नंबर क्वेश्चन है दैट इज विद रेफरेंस टू IFC मसाला बॉन्ड. ठीक है, sometimes seen in the news, which of the statement given below is are correct? See, if you follow the newspaper you will always encounter such words कि मसाला बॉन्ड होता क्या है. ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है कि यूपीएससी इफ यू सी और इफ यू एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर ऑफ यूपीएससी यू विल सी कि जो स्टेटमेंट्स हैं, सम स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, सम स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन आपका जो बेसिक्स है उसके ऊपर. सो दे आर ट्राइंग टू मग अप, यू नो, दे आर ट्राइंग टू, मतलब they are trying to converge the conventional part, that is the basic things, as well as the current affairs in the question. So both of the things are very important. Following newspaper is as important as जितना कि आपका basics है. ठीक है, so सबसे पहले कि मसाला bonds होता क्या है, इसको समझने के लिए you have to understand external commercial borrowing, that is ECB. Suppose government is trying to, finance its deficit. So what is the options? They can take money from the public. ठीक है, they can ask RBI, that is central bank, to print money, but this situation will create inflationary pressure on the economy. ठीक है, other options available for the government is that external commercial borrowing. ठीक है, so government can take or government can borrow the money in the foreign markets. ठीक है, or from the foreign companies. So masala bond is a type of what? External commercial borrowing, and it is always issued in rupees denomination. ठीक है, but outside India. ठीक है, so first statement says that the International Finance Corporation which offers these bonds is an arm of the World Bank. Yes, International Finance Corporation issues these bonds and which actually offers these bonds is an arm of the World Bank. Yes, this statement is correct. They are the rupee denominated bond and are a source of debt financing for the public and private sector. Yes, this statement is also correct. I've told you कि masala bond issued in rupees denomination, right, and it is issued in outside India. So both the statements are true. So select the correct options using the code given below. Both 1 and 2 are the correct. ठीक है, moving to the next question, that is the term core banking solutions is sometimes seen in the news, right? So can you see कि this is also a question that is, current affair based, and it has been asked in 2016. So core banking solution is sometimes seen in the news. Which of the following statement best describe this term? What is core banking solution? Understand it. Core banking solution is a network of banking. Suppose you are living in Delhi, ठीक है, and you want to use the banking system of any foreign bank or any, Indian bank in Delhi, right? So how it happens? You want to take money in Delhi, in Uttarakhand, in Himachal Pradesh, anywhere. Suppose you want to withdraw money from SBI ATM in Delhi, Uttarakhand, Himachal Pradesh, anywhere in India. So how does this happen? This happen
via core banking solution. So it is the network of, you know, banks. What is the statement? Statement is it is a networking of banks branches which enable customers to operate their accounts from any branch of the bank on its network regardless of where they open their accounts. ठीक, it does not matter कि आपने अकाउंट कहाँ ओपन किया है. ठीक है, आपने दिल्ली में किया है, आप कहीं और किया है. ठीक है, यू कैन यूज द बैंकिंग services anywhere wherever you are residing. So statement number 1 is correct. ठीक है, it is an effort to increase RBI's control over commercial bank through computerization. No, this statement is not true. This is not true regarding core banking solution. Core banking solution is just that key, it is a networking of banks branches, right? So this statement is incorrect. It is a detailed procedure by which a bank with a huge non-performing assets is taken over by another bank. Also, this statement is wrong, right? So select the correct options using the code given below, only one. ठीक है, so number option A is your correct answer, right? Moving to the next question. What is the purpose or purposes of the marginal cost of funds lending rate, that is MCLR? MCLR announced by RBI. This question was also asked in 2016. ठीक है, what is MCLR? Marginal cost of lending rate. Before marginal cost of lending rate, banks used to offer bank rate. ठीक है, bank rate, but it was not very much efficient. In case suppose Reserve Bank of India is reducing the repo rate. ठीक है, अब repo rate क्या होता है, that is we will discuss. ठीक है, repo rate, if Reserve Bank of India is reducing the repo rate, so the interest rate must be reduced, but bank used to do not do that. क्यों? क्योंकि ये जो है ये सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं था. दैट इज वाई देयर वाज अ इंट्रोडक्शन ऑफ MCLR, so that as the RBI reduces the repo rate, ठीक है, उसका effect can be directly seen on the interest rate, so that transparency can be maintained, right? So number 1 statement says that these guidelines help improve the transparency in the methodology followed by banks for determining the interest rates on advances. Advances का मतलब होता है loan. ठीक है, yes, this statement is correct. These guidelines help ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to the borrowers as well as the banks. Yes, this statement is also true. So the motto or the aim, the purpose of MCLR was marginal cost of lending rate was कि you maintain the transparency in the, you know, in the banking system. As the repo rate decreases by RBI, ठीक है, तो it must be there that कि interest rate should also क्या कम होना चाहिए. ठीक है, तो these statements are also true. Select the correct option, only one, only two, no, both 1 and 2. ठीक है, moving to the next question. Our next question is regarding with reference to the bitcoins. ठीक है, and bitcoins because it was on the news at that time, so that is why sometimes seen in the news. आप देख रहे हो कि questions के जो जिस तरीके का क्वेश्चंस हैं दैट इज इंटायरली यू नो कि करंट अफेयर बेस्ड. दैट इज वाई following newspaper becomes very very important for UPSC examination. If you want to clear the prelims or the mains or the interview, this current affairs or the newspaper is very much important as your
आपका जितना बेसिक इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है. गेटिंग इट? So, with reference to bitcoins, sometimes seen in the news, which of the following statements is or are correct? ठीक है. अब bitcoins क्या है? देखो, bitcoin is a digital currency. You can say it is a digital currency, but it is not a fiat currency, or it is not a legal tender मनी. अब क्या होता है लीगल टेंडर मनी और फियाट करेंसी? अगर आप नोट को निकालो और देखो, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, वहां पे आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उसका सिग्नेचर होता है, और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को फलाना रुपीस देने का वादा करता हूं. ठीक है. अगर 100 रुपये का करेंसी है तो उस पर लिखा रहेगा कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वादा करता हूं. दैट इज व्हाट इज नोन एज लीगल टेंडर. लीगल टेंडर मीन्स व्हाट? इट इज सपोर्टेड बाय लॉ. इट इज सपोर्टेड बाय लॉ. दैट मीन्स व्हाट? कि इफ यू वांट टू सपोज पे अ लोन टू योर फ्रेंड्स. मान लो कि आप 500 रुपए का जो है लोन पे करना चाहते हो अपने दोस्त को, आपने लिया, तो आप अगर उसको 100 रुपए का नोट दोगे तो दे विल हैव टू accept this notes. ठीक है. why? because this 100 rupees note is supported by किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, जिसपे लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं. तो दैट इज द लीगल टेंडर मनी. बट सपोज कि अगर आप चाहो कि आपने 500 रुपए सपोज अपने फ्रेंड से एज अ कर्जा लिया, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू पे देम बैक इन द फॉर्म ऑफ से फॉर कि मैं आपको 100 रुपये 500 रुपये का शॉपिंग वाउचर देता हूं. ठीक है. योर फ्रेंड, ठीक है, विल नॉट एक्सेप्ट इट. क्यों? क्योंकि वो शॉपिंग वाउचर उसके लिए किसी काम का नहीं है. दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय लॉ. दैट इज नॉट लीगल टेंडर मनी. सो दैट इज व्हाट इज लीगल टेंडर मनी विच इज सपोर्टेड बाय लॉज, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फियाट मनी. सो बिटकॉइन इज नॉट दैट. ठीक है. अगर आप देखोगे लीगल टेंडर मनी के केस में, यहां पे सेंट्रल बैंक इज इन्वॉल्व, जहां पे आरबीआई ये क्या करता है? प्रॉमिस करता है. लेकिन बिटकॉइन के केस में यहां पे कोई भी सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है. बिटकॉइन के केस में कोई भी सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व नहीं है. एंड बिटकॉइन इज based on blockchain technology which is a decentralized database system जिस पे bitcoin जो है काम करता है. again what is blockchain technology? these things decentralized system, database system, this is the matter of discussion again, right? So bitcoin is the kind of digital currency, right, which is not a legal tender money, meaning there are no banks involved between sender and receiver. Okay. And this bitcoin is based on blockchain technology. Getting it? So अगर आप बिटकॉइन किसी को भेजना चाहते हो, सपोज इफ यू आर इन इंडिया, राइट, इंडिया, एंड यू वांट टू सेंड 10,000 रुपीज इन यूएसए, तो इट विल टेक सम टाइम, प्लस यू हैव टू गिव द प्रोसेसिंग चार्ज एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी फी इन्वॉल्व होगा यहाँ पे वो. बट इन केस ऑफ बिटकॉइंस यू जस्ट नीड टू सेंड 10,000 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइंस टू द पर्सन इन द यूएसए, और वहाँ पे वो उसको रिसीव करेगा. ना तो इस केस में आपके जो इंफॉर्मेशंस हैं वो रिवील्स होंगे. ठीक है. जस्ट ये क्या है कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आपने क्या किया? बिटकॉइन को ट्रांसफ़र किया. ठीक है. जो सेंडर्स है या फिर जो रिसीवर्स है वो दोनों बीच में क्या है? एनोनिमस है. ठीक है. उसके जो डिटेल्स है दैट इज नॉट पब्लिश्ड. सो बेस्ड ऑन दीज डिस्कशंस लेट्स read the statements. Number 1 is saying that bitcoins are tracked by central bank of the countries. No, I've told you bitcoins are not tracked by any country, any central banks of the countries, because
बिटकॉइंस सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। नंबर सेकेंड, एनी वन विद अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनी वन एल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस। यस, आई हैव टोल्ड यू दैट दिस statement 2 is correct. Online payment can be sent without either side knowing the identity of the others. Yes, this statement is also true. So out of these three, statement number 2 and statement number 3 are correct. So option B would be your correct answer, 2 and 3 only. Okay, moving to the next question, that Pradhan Mantri Mudra Yojana is aimed at what? Bringing the small entrepreneurs into formal financial system. Let's read the option B. Providing loans to poor farmers for cultivating particular crops. Providing pension to old and destitute persons. Funding the voluntary organizations involved in the promotion of skill development and employment generation. ठीक है। ऑल्सो मुद्रा लोन जो है हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। तो जो मुद्रा लोन है इसका पर्पस है कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसको लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड दीज लोन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज शिशु लोन, ठीक है, उसके बाद किशोर लोन, तरुण लोन, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज तरुण प्लस, ठीक है, तरुण प्लस। सो द लोन हैज बीन कैटेगराइज्ड अंडर मुद्रा योजना इनटू 4 पार्ट्स, राइट? शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन एंड तरुण प्लस लोन. Under Shishu loan, right, you will be provided up to 50K loan for starting your business. ठीक है. Under Kishore, you will be provided from 50K to 5 lakh of loans to grow your existing business. ठीक है. And what about Tarun? 5 lakh to 10 lakh to expand your business. And under Tarun Plus, you will be provided 10 to 20 lakhs. This is lakhs. 10 to 20 lakhs of business. So, which statement is correct? Bringing the small entrepreneurs into formal financial system. ठीक है. Providing loans to the poor farmers. No, farmers की बात नहीं है. For cultivating particular crops. No, it is not true. ठीक है. गरीब लोगों को नहीं, ऐसा भी नहीं है. फंडिंग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, नो, ये भी नहीं है. सो मेन मोटो इज टू प्रमोट द स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. सो दैट इज वाई मुद्रा लोन इज देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है कि व्हाट इज या आर द पर्पस या पर्पसेस ऑफ गवर्नमेंट सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम. Again asked in 2016. See, what is, you have to understand कि what is government's sovereign gold bond scheme. ठीक है. गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है? सपोज इफ यू आर परचेजिंग फिजिकल गोल्ड, आप सपोज 1 ग्राम सोना खरीदते हो, ठीक है, जिसका कॉस्ट इज समवेयर, से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली सेइंग दैट 1 लाख रुपीज, सॉरी 10 ग्राम 1 लाख. ठीक है. अब इफ यू वांट टू सेल, इधर यू कैन यूज दिस गोल्ड, ठीक है, एज अ ऑर्नामेंट्स, और यू कैन राइट इट, आई मीन यू कैन यूज इट एज अ प्रॉपर्टी. ठीक है. बट मोस्ट पीपल इन इंडिया यूज गोल्ड्स, यू नो, विद फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑर्नामेंट्स. ठीक है. तो सपोज आपने 10 ग्राम्स ऑफ क्या खरीदा, गोल्ड खरीदा, दैट इज द फिजिकल गोल्ड. आपने उसका रिंग बनाया, और से फॉर एग्जाम्पल कि आफ्टर 5 years आपको क्या है कि आपको कुछ मनी का जो है रिक्वायरमेंट है, यू नीड सम मनी. सो व्हाट विल यू डू? यू विल सेल दिस. ठीक है. और मे बी सपोज कि उस टाइम पे कि ओनली द रेट ऑफ द गोल्ड एट दैट टाइम 10 ग्राम्स 1.1 लाख रुपीज है.
या फिर 1.2 लाख रुपीज़ है, ठीक है, तो यू विल गेट ओनली 20,000, ठीक है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, ओनली 20,000. बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट्स सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम व्हाट इज हैपन कि आपको गोल्ड नहीं खरीदना है, यू डोंट नीड टू बाय द फिजिकल गोल्ड, यू डोंट नीड टू बाय द रिंग, यू जस्ट नीड टू डू व्हाट, यू विल बी गिवन अ डिजिटल पेपर. वहां पे ये चीज लिखा हुआ रहेगा कि आपने 10 ग्राम्स ऑफ क्या खरीदा, गोल्ड खरीदा, at the rate of you will be given some interest on it, that is suppose कि 2.5% of interest you will be given for 8 years, ठीक है. आफ्टर 8 years you will be getting कितना रुपीज, आपने 10 ग्राम कितना में 1 लाख में खरीदा, ठीक है, दिस बॉन्ड यू विल बी गेटिंग 2.5% का इंटरेस्ट रेट एज वेल, ठीक है, आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस 10 ग्राम का सपोज कि आफ्टर 5 years 7-8 years जो है उसका रेट इज 1.2 लाख, तो 20,000 दिस, ठीक है, ये प्रॉफिट. ऐसा नहीं है कि जिस रेट पे आपने गोल्ड खरीदा था उसी रेट पे आपको गोल्ड बेचना पड़ेगा, नो, वट एवर द करेंट प्राइस ऑफ द गोल्ड इज वेन एवर यू वॉन्ट टू सेल इट, वो प्राइस आपको मिलेगा, ठीक है, प्लस 2.5% का जो इंटरेस्ट रेट है दैट विल ऑल्सो गिवन टू यू, ठीक है. सो दीज केस आर आई गेस वेरी वेरी बेनिफिशियल इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू परचेज द फिजिकल गोल्ड, ठीक है. सो based on the discussion let's read the statement. Number 1 says to bring the idle gold lying with Indian household into the economy. उसके बाद टू प्रोमोट FDI इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, ठीक है, टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स, राइट. सो टू प्रमोट FDI इन गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर्स का कोई भी लेना देना नहीं है, जहां पे हमने देखा था यहाँ पे कि FDI से इसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है. टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड lying with the Indian household into the economy, yes, this statement is correct. And to reduce India's dependence on gold imports, yes, this is also what, this is also true. So the based on the statement select the correct answer. So 1 and 3 कहाँ पे है, number option number C. So option number C would be your correct answer, right. Moving to the next question. Next question says that consider the following statements. पहला statement ये है कि National Payments Corporation of India helps in promoting financial inclusion in the country. Number 2 statement says that NPCI, that is again National Payment Corporation of India has launched RuPay card payment scheme, ठीक है, रुपे कार्ड, अ कार्ड ऑफ पेमेंट स्कीम. सो दीज बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर ट्रू, बोथ A and C. Moving to the next question, what is the purpose पूछा जा रहा है आपसे of setting up of a small financial banks in India, ठीक है. पहला ऑप्शन कह रहा है कि to supply credit to small business unit, yes, this is for a small business unit. To supply credit किसको, to small and marginal farmers, yes, small and marginal farmers को, small businesses units को, under this bank, small finance bank के अंडर में जो एम रखा गया है to provide, to supply the credit to the small business unit, ठीक है, जो भी marginal farmers है, small farmers है, उनको भी क्या लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना. स्टेटमेंट 3 सेज दैट द टू encourage young entrepreneurs to set up business particularly in rural area. No, under this बैंक जिसका जो एम है वहाँ पे ये कहीं पे मेंशन नहीं है कि टू encourage young entrepreneurship to set up business, ठीक है. सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट. अब आपको चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है.
ए 1 एंड 2, यस 1 एंड 2 आर करेक्ट ऑप्शंस। वैसे भी आप देख रहे हो कि इसमें 3 है 3 है 3, ये तीनों ऐसे भी नहीं होने वाला है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following best describes the term merchant discount rate sometimes seen in न्यूज़। अब देखो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब कि सपोज कि आप जो है सपोज यू आर पेइंग 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज टू, जहां से आप सपोज करो कि यू आर परचेजिंग योर क्लोथ्स, आपने 10,000 रुपीज का जीन्स प्लस टी शर्ट खरीदा, ठीक है। तो आपने 10,000 रुपीज, आपका बैंक कुछ और हो सकता है, ठीक है। जो ये मर्चेंट है, जो ये शॉपकीपर्स है, उसका बैंक अकाउंट कुछ और हो सकता है, मतलब कुछ और इन द सेंस कि वो उसका जो अकाउंट है किसी और बैंक में हो सकता है, मान लो कि एसबीआई में है। आपने जो पे किया, से फॉर एग्जांपल आप जो है पंजाब नेशनल बैंक से इसको पे कर रहे हो, ठीक है। तो पीएनबी से एसबीआई के बीच में जो है पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि दीज सर्विसेज आर फ्री? नो, दीज सर्विसेज आर नॉट फ्री। देन हु विल पे द इसका प्राइस? द रिसीवर, द मर्चेंट हु विल टेक द मनी। आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, मर्चेंट से पैसा लिया जाएगा, एंड मर्चेंट विल हैव टू पे सर्टेन परसेंटेज, से फॉर एग्जांपल 1% हो गया, 0.5% हो गया, या 2% हो गया, यू नो, डिपेंडिंग अपॉन द जो उसका मैंडेट है उसके पर, ठीक है। तो ये चीज होता है आपका क्या? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मतलब गवर्नमेंट, sorry not the government, merchant will have to pay certain percentage for this facilities, but what is happening these day, आपका जो गवर्नमेंट है, ठीक है, दे आर आस्किंग, गवर्नमेंट या फिर आरबीआई, दे आर आस्किंग बैंक्स टू रिड्यूस, और यू नो जस्ट आप इसको पूरा का पूरा क्या करो, माफी कर दो। क्यों? टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। सो रीड द स्टेटमेंट। द इंसेंटिव गिवन बाय अ बैंक, इंसेंटिव है क्या ये? इंसेंटिव गिवन बाय अ बैंक टू अ मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड्स परटेनिंग टू द बैंक, ये इंसेंटिव नहीं है, ठीक है। दिस इज द फी चार्ज्ड बाय बैंक। The amount paid back by banks to the customer when they use debit cards for financial transaction for purchasing goods or services, no. The charges to a merchant by a bank for accepting payments from his customer through the bank's debit card, ठीक है। तो this statement is correct. This is the fee, this is the charge, not the incentive, not something else, ठीक है। अगेन यहाँ पे इंसेंटिव की बात करी जा रही है, the incentive given by government, no, this is not the incentive, ठीक है। So understood कि what is merchant discount rate, again sometimes seen in the news, right? देखो आप अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं आज के सेशंस में, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन इज करंट अफेयर्स बेस्ड। सो दैट इज व्हाई रीडिंग न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट correctly describes the meaning of legal tender money. I have already discussed कि what is legal tender money. Legal tender money is that is supported by the laws of the country, ठीक है। मतलब क्या, जो आप देख रहे हो कि आरबीआई का जो साइन रहता है आपके करेंसी नोट पे कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वादा करता हूँ, मैं धारक को 50 रुपये देने का वादा करता हूँ, ठीक है, मैं धारक को 500 रुपये देने का वादा करता हूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज द लीगल टेंडर मनी। मीनिंग व्हाट, कि दिस पर्टिकुलर करेंसी नो वन कैन डिनाई टेकिंग इट, ठीक है। आप कहीं पे भी लेके जाओगे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग। बट एट द सेम टाइम इफ यू आर गिविंग से फॉर एग्जाम्पल कि शॉपिंग वाउचर वर्थ ₹500 टू द, जब आप मान लो कि 500 रुपये का कुछ खरीदना है तो द मर्चेंट और द शॉपकीपर्स माइट नॉट एक्सेप्ट इट। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट लीगल टेंडर,
क्योंकि ये भी इसको अगर आगे लेके किसी को देगा तो वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. बट व्हाट अबाउट 500 रुपीज़ का जो करेंसी है, दे विल हैव टू एक्सेप्ट बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय द प्रॉमिस ऑफ द RBI. Understanding it? So read the statement. The money which is tendered in court of law to defray the fee of legal cases, कोई मतलब नहीं है. The money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claim. Yes, compulsory है. क्यों compulsory है? क्योंकि it is supported by the promise of RBI. So statement number B is correct. ठीक है, आगे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा माइट बी, ये सब चीज. उसके बाद द मेटालिक मनी, नो, कोई मतलब नहीं है. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी. ऐसा नहीं है. जब आरबीआई है वो दे ऑल्सो मैनेज the services of government of India security as well as the state security. So this statement is wrong because it says that not any state government, right? सेकेंड ऑप्शन कहता है आपका कि ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्यों? जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, टी बिल्स, ठीक है, दे आर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट स्टेट जो आपका है स्टेट गवर्नमेंट है, इंस्टेड ऑफ इशूइंग टी बिल्स दे यूज SDL, दैट इज स्टेट डेवलपमेंट लोन. ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट लोन अब क्या होता है? ये एक तरीके का क्या है? बॉन्ड है. अगेन, ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू. यस, जो टी बिल्स होते हैं आपके, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट पे नहीं है, दे आर एट डिस्काउंटेड रेट. मतलब क्या हुआ कि सपोज यू परचेज 100 रुपीज डिनोमिनेशन का ट्रेजरी बिल, ठीक है, बट नॉट एट द रेट ऑफ 5%, 4%, नॉट एट द रेट ऑफ परसेंट, बट एट द रेट ऑफ डिस्काउंटेड रेट. अगर इसका प्राइस 100 रुपया है तो यू विल हैव टू पे ओनली 98 रुपीज, राइट, 98.5 रुपीज. इतना ही रुपये आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा. लेकिन जब आप इसको सेल करने के लिए जाओगे तो यू विल बी गिवन 100 रुपीज टोटल. मतलब क्या कि आपने खरीदा इसको डिस्काउंटेड रेट पे, इसका रेट था कितना? 100 रुपीज. आपने खरीदा कितना? 1.5 रुपीज लेस में. मतलब आपको 1.5 रुपीज का जो है यहाँ पे क्या मिला? डिस्काउंट मिला. लेकिन जब आप इसको सेल करोगे, ठीक है, जब आप इसको सेल करोगे तो यू विल बी गिवन 100 रुपीज पूरा का पूरा. ठीक है, सो टी बिल्स आर इशूड at discounted rate, not on the interest rate. ठीक है, so treasury bills offer are issued at a discount from the par value. This statement is also correct. So 2 and 3 are correct option. आपको चेक करना है 1 and 2, ये तो है ही नहीं. 2 and 3, ऑप्शन सी जो है आपका दैट इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, next question says that कि consider the following statements. Capital adequacy ratio is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the account holders fail to repay dues. Yes, banks will have to set aside certain percentage as a capital adequacy रेशियो. ठीक है, सो दैट इफ एनी फाइनेंशियली if any financial emergency occur in the future, so that they can offset these time very easily. So this statement is about capital adequacy ratio is true.
Number second is CAR, that is capital adequacy ratio, is decided by each individual bank. No, this is a wrong statement, right? Capital adequacy ratio is not decided by each individual bank, but rather it is decided by RBI. ठीक है, under the regulation of RBI it is decided. ठीक है, which of the statement is correct? Only one. ठीक है, only one statement is what? True. Moving to the next question, which of the following is not included in the assets of a commercial bank in India? See, आपको समझना पड़ेगा कि what is assets and liability. ठीक है, liability, टू कॉन्सेप्ट्स आर देयर, असेट्स एंड लाइबिलिटी. असेट्स अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर मान लो कि यू आर अ स्टूडेंट्स, ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट्स एंड यू हैव अ लैपटॉप. ठीक है, सो दिस लैपटॉप इज असेट्स फॉर यू, बट इफ यू टेकन अ लोन for the education, that is your liability. That means what? You have to pay back. So what you own is your assets and what you owe is your liability. That means you have to pay your liability to the, जहां से आपने चीजों को लिया है, लोन लिया है तो वो आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है, असेट्स जो है वो आपके पास जो है. तो आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, इसमें से ऐसा कौन है नॉट इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक. ठीक है, तो जो एडवांसेस है दैट इज द लोन. यस, लोन जो है वो किसी कॉमर्शियल बैंक के लिए क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका एसेट्स है. जो डिपॉजिट्स है, अब देखो व्हाट इज हैपनिंग कि अगर यू पे 10 lakhs रुपीज और you park 10 lakh rupees with the बैंक, मतलब क्या हुआ कि 10 लाख रुपए जो आपने बैंक के पास जमा किया है, ठीक है, तो दैट इज द डिपॉजिट्स एंड दैट डिपॉजिट्स विल हैव टू बी पेड फर्दर टू यू. ठीक है, तो दिस इज द लायबिलिटी, दिस इज द लायबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक, नॉट द एसेट. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर. आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, तो डिपॉजिट्स जो है इज नॉट द असेट्स ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक, रादर व्हाट इट इज, रादर इट इज द लायबिलिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स. अंडरस्टैंडिंग इट. अगेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट्स है. और जो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज बैंक और बैंक के बीच की बात है ये, मान लो कि एसबीआई एंड पीएनबी के बीच की बात है. ठीक है, पीएनबी रिक्वायर्स सम मनी, तो दे विल आस्क एसबीआई कि गिव मी दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर ओवरनाइट पीरियड, फॉर 1 days 2 days एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो दैट इज जो है, ये जो है आपका एसेट्स होता है. तो ऑप्शन बी जो है आपका deposits, that is not the assets, that is what, liability of the commercial bank. So that is why option B is a correct answer. Understanding it? Okay, next, in the context of India, which of the following factors are contributor या contributors to the reducing risk of a currency crisis? ठीक है, the foreign currency earning of India's IT sector, increasing the government expenditure, ठीक है, remittances from Indians abroad. तो अगर increasing the government expenditure है तो how would it जो है कंट्रीब्यूट करेगा रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस. अगर करेंसी क्राइसिस है तो एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो करेंसी क्राइसिस विल फर्दर फॉस्टर और फर्दर इंटेंसिफाई. तो इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, यस, जो आईटी सेक्टर्स हैं एंड दे आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, दे आर अर्निंग फॉरेन करेंसी, राइट, डेफिनेटली दे विल हेल्प रिड्यूसिंग द करेंसी क्राइसिस. एट द सेम टाइम रेमिटांसेस फ्रॉम
इंडियन अब्रॉड्स, जो भी इंडियंस विच इज रिसाइडिंग अब्रॉड्स, कोई गल्फ कंट्रीज में है, कोई अमेरिका में है, कोई साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है, जहां भी कहीं पे है, दे आर सेंडिंग मनी बैक टू द इंडिया। तो ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रेमिटांसेस। तो ऑल्सो रेमिटांसेस इज हेल्पिंग रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 1 इज योर व्हाट करेक्ट आंसर, एंड ये जो है 2 ऑप्शन आपका रॉन्ग है। अब इसमें से आप चेक कर लो, 1 एंड 3 जो है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। गेटिंग इट? Moving to the next question. Moving to the next question, which says that which one of the following is not the most likely measure the government or the RBI takes to stop the slide of Indian rupee? ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। Which one of the following is not the most likely measure द गवर्नमेंट या फिर आरबीआई टेक्स टू स्टॉप स्लाइड ऑफ इंडियन रुपीज? कर्विंग इंपोर्ट ऑन नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, encouraging Indian borrowers to issue rupee denominated masala bond, easing conditions relating to external commercial borrowing, and following an expansionary monetary policy. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई, इफ दे आर फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि जो रेपो रेट है वो कम हो जाएगा, मतलब देयर वुड बी पंप इन ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी। सो हाउ वुड इट हेल्प? दैट इज नॉट seems to the correct measure to stop the slide of Indian rupees. ठीक है, तो curving imports of non essential good and promoting exports, yes, this is true. Encouraging Indian borrowers to issue rupee denominated masala bonds, yes, this is also true. Easing condition relating to external commercial बैंक, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट वो पूछ रहा है आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली। सो फॉलोइंग एन एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर टू स्टॉप स्लाइड ऑफ इंडियन रुपीज। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the money multiplier in an economy increases with which one of the following? ऑप्शन है आपका इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ऑल्दो देखो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से अभी इस मनी मल्टीप्लायर का कोई खास लेना देना नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में CRR है, यहाँ पे SLR है, राइट। तो जितना ज़्यादा ये CRR होगा उतना ही कम जो है मनी विल बी अवेलेबल टू द बैंक्स। ठीक है, मनी विल बी अवेलेबल टू द बैंक्स फॉर फर्दर एक्टिविटीज़। तो अगर आप इसको और इंक्रीज कर दोगे तो बैंक के पास जो मनी है वो और कम हो जाएगा, SLR और बढ़ा दोगे तो इसके पास और पैसा कम हो जाएगा। हम वैसे मनी मल्टीप्लायर को वी विल सी इन डिटेल्स, बस आप इतना समझो कि इट डिपेंड्स ऑन रिजर्व रिक्वायरमेंट, जहाँ पे रिजर्व रिक्वायरमेंट सच एज CRR हो गया या फिर SLR हो गया। तो अगर ये दोनों बढ़ जाता है, अगर मान लो कि 100 रुपीज़ जो है इज द अमाउंट और SLR दैट इज 18%। ठीक है, अब 18% है और मान लो आप इसको और इंक्रीज कर दोगे 20%, तो बैंक विल हैव नाउ ओनली 80 रुपीज टू फर्दर प्रोसेस फर्दर एक्टिविटीज। तो क्या होगा कि अगर आप इसको इंक्रीज कर दे रहे हो तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। आपका जो ये
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसको भी डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर ये दोनों कम होता है देन मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट्स इन एन इकोनॉमी कैन बी, उसका जो इफेक्ट्स है वो बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन अगर इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन करोगे, मतलब क्या कि मोर पीपल आर पुटिंग देयर मनी इन द बैंक्स, तो बैंक्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा तो दे कैन उसको आगे क्या कर सकता है, वो इन्वेस्ट कर सकता है, वो उसका मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा जा सकता है फर्दर। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says that कि if another global financial crisis happens in the near future, अगर कोई भी ऐसा financial crisis near future में होता है, which one of the following actions या फिर policies are most likely to give some immunity to India? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 says that कि not depending ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग। क्या मतलब है इसका, समझो कि नॉट डिपेंडिंग, अगर इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग दैट मीन्स कि आपने सपोज कि फॉरेन से $10 बिलियन का जो है लोन लिया, हाइपोथेटिकली सेइंग अगेन $10 बिलियन, $10 बिलियन, एंड दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, 1 ईयर या फिर 2 ईयर इस तरीके से हुआ, और मान लो कि इन नियर फ्यूचर में एनी फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन, एनी फाइनेंशियल क्राइसिस ऑकर्स, ठीक है, तो यू विल हैव टू पे इट, इजंट इट? और आपके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस है, और आप अगर मान लो कि इसको पे करोगे तो दैट क्राइसिस विल फर्दर इंटेंसिफाई, इजंट इट? सो इससे बेहतर है कि आपको शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स पे डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर मान लो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब कि आपने ये $10 बिलियन का जो लोन है, से फॉर एग्जांपल कि आप 50 ईयर्स के लिए लिया है, ठीक है, या फिर 30 ईयर्स के लिए लिया है, तो दैट इज ओके। यहाँ पे इसका इम्पैक्ट नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है दैट विल नॉट बी कंटिन्यू एज 30 ईयर 20 ईयर, ऐसा नहीं होगा, दे विल बी सॉर्टेड आउट विद इन ईयर्स और 2। ठीक है, तो नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 सेज दैट कि ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, अगर आप ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस मान लो कि बहुत सारे फॉरेन बैंक्स आर ओपनिंग, ठीक है, और फॉरेन बैंक्स आर ओपनिंग, तो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो ये बैंक वाला जो है वो क्या करेगा, पैसा अपने कंट्री में लेके चला जाएगा ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, फर्दर इंटेंसिफाई द फाइनेंशियल क्राइसिस विद इन द कंट्री, इजंट इट? सो दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओपनिंग अप ऑफ more foreign banks will not help to fight the financial crisis. Maintaining full capital account convertibility, last lecture में we've seen that कि what is the full capital account convertibility। पहले capital account, जैसे कि मान लो कि जो FDI है, foreign investment, चाहे वो FDI है या फिर FII है, ठीक है, अगर मान लो कि 100% FDI जो है आप अलाउ करते हो अपने कंट्री में, तो दैट इज तो ओके कि फॉरेन करेंसी आर कमिंग, राइट, फॉरेन कंपनीज आर कमिंग, ओपनिंग देयर ब्रांचेस, जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट एट इसका जो फ्लिप साइड है वो क्या है कि जो भी आपका डोमेस्टिक मार्केट है, ठीक है, जो भी आपका डोमेस्टिक मार्केट है, दैट डोमेस्टिक मार्केट विल बी डीस्टेबलाइज्ड, अंडरस्टैंडिंग इट? जो छोटे मोटे मार्केट, जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स हैं आपके कंट्री में, वो FDI और FII वाले के सामने में नहीं टिकेंगे, और दैट विल बी, मतलब दोज प्रोड्यूसर्स विल बी वाइप्ड आउट। ठीक है, उसका फ्लिप साइड इज दिस, अंडरस्टैंडिंग इट? तो कह रहा है कि मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी is going to give immunity to India? No, it is not going to give immunity to India, because जब भी क्राइसिस आएगा तो FDI वाला क्या चाहेगा, वो अपना पैसा लेके दूसरे कंट्री में भागना, जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब वो बाहर जाना चाहेगा, या फिर जो FII है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो भी बाहर निकलना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि क्राइसिस है, अंडरस्टैंडिंग दिस? तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। कौन सा है? ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है कि इफ यू विड्रॉ 1 lakh rupees in cash from your demand deposit accounts and at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be what? To reduce it by 1 lakh rupees, to increase it by 1 lakh rupees, to increase it by more than 1 lakh rupees, to leave it unchanged. देखो, ये जो मनी सप्लाई है ना, दैट इज सपोज कि मनी सप्लाई M1 इज इक्वल टू वॉट, M1 इज इक्वल टू होता है आपका, ये मनी सप्लाई है, वी विल सी M1 M2 M3 M4 क्या होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग M1 क्या होता है कि करेंसी होल्ड विद पब्लिक्स, ठीक है, प्लस जो डिमांड डिपॉजिट्स है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद बैंक, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ यू विड्रॉ, अगर मान लीजिए कि आपके डिमांड डिपॉजिट में क्या है, 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो विदाउट, अभी आपके पास 0 रुपया, ठीक है, प्लस यहां पे आपके पास 1 लाख रुपया, ठीक है। तो दिस इज द मनी सप्लाई इन केस ऑफ दिस। अगर आपने यहां से 1 लाख रुपया निकाल लिया, तो यहां पे निकालने के बाद 0 रुपीज, और ये पैसा कहां पे आ गया, आपके पास, तो अगेन यहां पे क्या होगा, 1 लाख रुपया आपने अपने डिमांड डिपॉजिट से पैसा निकाल करके अपने पास रख लिया, आपके पास पहले कुछ नहीं था, यू डू नॉट हैव एनी, राइट, वो पैसा कहाँ था आपका, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में। तो अगर आप देखोगे कि इस दोनों में कोई चेंजेज हो रहा है क्या, यहाँ भी 1 लाख है, यहाँ भी 1 लाख है, ठीक है, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, तो टू लीव इट अनचेंज्ड, इसका मतलब सिंपली ये है कि आप अपने पर्स से पैसा निकाल रहे हो, अगर बहुत ही लेट मैन टर्म्स में मैं आपको समझाऊं, आपने अपने पर्स से फॉर एग्जांपल कि 1 लाख रुपया निकाला और उसको आपने अपने पॉकेट में रख लिया, ठीक है, यही चीज ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आपका जो है डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो आपके पास हो या फिर वो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में हो, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहता है कि अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ऑल्दो ये जो है स्कीम का है लेकिन स्टिल रिलेटेड टू आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। पहला है वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, ठीक है। सेकेंड है आपका कि परचेज ऑफ कंबाइन harvesters, tractors and mini trucks, consumption requirement of farm households, post harvest expenses, construction of family houses, setting up of villages cold storage facility. So which one of these are true under Kisan credit card schemes? C, working capital for maintenance of farm assets, yes, this statement is true. If you follow this scheme, if you read this scheme, all of those things are written there. Purchase of combined harvester, tractors and mini trucks, no, this is not for this activity. Consumption requirements of farm households, yes, this is true. Post हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, यस, उसके लिए भी है, पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद भी अगर कुछ खर्चा आता है तो उसके लिए भी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउसेस, नो, ये सब भी नहीं है। तो कौन कौन सा हुआ, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब क्या कहता है कि कॉमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, यस, कॉमर्शियल पेपर जो है इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड
promissory notes because it is not issued by government. It is not issued by government. Certificate of deposits is a long term instrument issued by RBI. No, certificate of deposits is not issued by RBI, rather issued by the corporation. ठीक है, companies. Call money is a short term finance used for interbank transaction. Yes, कॉल मनी जो है, अगर मान लीजिए कि आप SBI और एक्सिस बैंक इज देयर, ठीक है, तो दोनों के बीच का जो ट्रांजेक्शन है फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, दैट इज नोन एज कॉल मनी. ठीक है. जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. सी, जीरो कूपन बॉन्ड्स जो होते हैं दैट इज नॉट इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, राइट. तो दिस इज द, ये इंटरेस्ट बियरिंग नहीं है, दैट इज एट डिस्काउंटेड रेट. ठीक है, डिस्काउंटेड रेट. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो विच वन इज ट्रू? 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन. सो 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो इस लेक्चर में इतना ही. फिर मिलते हैं आपसे किसी और लेक्चर में जहां पे वी विल डिस्कस और भी जितने सारे क्वेश्चंस हैं फ्रॉम for UPSC prelims, PYQ of economics, and we will discuss further there. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.